কাশ্মীরে একটা হামলা হয়েছে যেখানে হিন্দুদের প্রশ্ন উঠছে, সেখানে আমি একজন হিন্দু প্রচারক হওয়ার জন্য হিন্দু সমাজের জন্য যথেষ্টই চিন্তিত, কেননা সরকার ব্যর্থ হচ্ছে। এই ঘটনাটি দেখার পর সমস্ত হিন্দুদের নিজেদের সুরক্ষার কথা ভাবা উচিত। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে হিন্দুদের সুরক্ষার জন্য নিজেদের কাছে অস্ত্র রাখা উচিত। প্রয়োজনে দরকার হলে তা নিজেদের রক্ষায় ব্যবহার করা যাবে। পেহেলগামে সন্ত্রাসীরা যে বেছে বেছে হিন্দুদের জানে শেষ করেছে, সেই নিয়ে এবার বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন শঙ্করাচার্য। তিনি বলছেন যে হিন্দুদের সুরক্ষার জন্য নিজেদের কাছে অস্ত্র রাখা উচিত। শঙ্করাচার্য কি বলছেন বুঝতে পারছেন? তার এই মন্তব্য ইতিমধ্যেই নানা প্রশ্নের মুখে পড়ছে। পেহেলগামে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় কমপক্ষে ২৬ জন নিরীহ পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। খুব স্বাভাবিক, দেশ জুড়ে ক্ষোভের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সামরিক তৎপরতা শুরু করেছে ভারত। এই অবস্থাতে বিস্ফোরক মন্তব্যে জড়িয়েছেন শঙ্করাচার্য। তিনি বলছেন যে কাশ্মীরে একটা হামলা হয়েছে, আমি শুনেছি। সরকার উত্তরাখণ্ডে চারধাম যাত্রা স্থগিত করার কথা ভাবছে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে এই যাত্রা বন্ধ করার কোনো বিশেষ কারণ নেই। তাই এই বিষয়ে আলোচনা করা উচিত, বিবেচনা করা উচিত, সুরক্ষার বিষয়টা ভালো করে দেখা উচিত, আর যাত্রা সচল রাখা উচিত। এখন নিশ্চিত যে কেউ রয়েছে যে ভারতকে চ্যালেঞ্জ করছে, কেউ রয়েছে যে হিন্দুদের চ্যালেঞ্জ করছে। যদি কেউ চ্যালেঞ্জ করে থাকে তাহলে ভারত সরকারের সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা উচিত এবং জবাব দেওয়া উচিত। হিন্দুদেরকে যখন কেউ প্রশ্ন করছে, তখন একজন হিন্দু ধর্মের প্রচারক হয়ে আমি সত্যি হিন্দু সমাজের জন্য চিন্তিত। আমরা আমাদের নিরাপত্তার কথাও ভাবছি, কেননা সরকার ব্যর্থ। সন্ত্রাসীরা সহজেই অস্ত্র নিয়ে এসে আমাদের লোকেদের শেষ করে দিচ্ছে, তারপর আবার চলেও যাচ্ছে। কোথা থেকে এলো, কোথায় গেল, কেউ জানি না। এই ঘটনাটি দেখার পর সমস্ত হিন্দুদের উচিত নিজেদের সুরক্ষার কথা ভাবা। প্রয়োজন হলে তাদের উচিত অস্ত্র রাখা, প্রয়োজন পড়লে তা তারা ব্যবহার করুন। কি বলছেন তিনি, শুনুন। कश्मीर में घटना हो गई है, जिसके कारण हमने सुना कि उत्तराखंड में भगवान बद्री केदार और गंगोत्री यमुनोत्री की जो 4 धाम यात्रा होती है, उसके बारे में भी विचार किया जा रहा है कि अभी उसको शुरू ना किया जाए। लेकिन हम समझते हैं कि यात्रा बंद करने का कोई विशेष परिणाम नहीं है, इसलिए इस बारे में समीक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा की व्यवस्थाएं बनानी चाहिए और यात्रा जारी रखनी चाहिए। बात यह है कि अब तो ये स्पष्ट है कि कोई है जो भारत को चुनौती दे रहा है, कोई है पूछ करके कि हिंदू हो मार रहा है। इसका मतलब है कि कोई है जो हम हिंदुओं को चुनौती दे रहा है। इसलिए भारत देश को चुनौती है तो भारत देश के नेताओं को, हमारी सरकार को उस चुनौती को स्वीकार करके चुनौती देने वालों को सबक सिखाना चाहिए। जहाँ तक हम हिंदुओं का प्रश्न है, एक हिंदू धर्माचारी होने के नाते हम भी अपने हिंदू समाज के लिए चिंतित हैं। हम भी इस बारे में मंथन कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो सके, क्योंकि जो सरकारें हैं वो तो कहीं ना कहीं असफल हो रही हैं। हिंदू होने के नाते हमको मार दिया जाता है, मारने वाला सैकड़ों किलोमीटर से चल के आता है, बड़े बड़े हथियार अपने साथ लिए रहता है, एक नहीं अनेक की संख्या होती है। बार आराम से आ जाता है, आराम से घटना करता है, 30-40 मिनट रुक करके लोगों को मारता है, पूछता है, ये करता है, वो करता है, और फिर आराम से चला जाता है। कहाँ से आया, कहाँ चला गया, पता ही नहीं है। तो ये जो घटना है, इसने बता दिया है कि हर हिंदू को अपनी सुरक्षा के लिए अब स्वयं सचेष्ट होने की आवश्यकता है। इसलिए हिंदुओं को इस बारे में चिंतन करने की ज़रूरत है, और अगर आवश्यकता पड़े तो शास्त्र का अभ्यास भी करना चाहिए और धारण भी करना चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर अपनी रक्षा और अपनों की रक्षा वो कर सकें। এরই পাশাপাশি তিনি আরো বলছেন যে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে আমাদের শেষ করা হচ্ছে। আমরা আমাদের ঘরে চৌকিদার রাখছি, আর আমি কোথাও চলে গেছি, সেই সময় আমার ঘরে কিছু হলে কাকে এসে প্রথমে ধরবো? সবার প্রথমে চৌকিদারকেই ধরবো, কিন্তু এখানে তা হচ্ছে না।
যদি আজ চৌকিদার নিজের কাজে সতর্ক থাকেন তাহলে এটা হয় না। কেউ সন্ত্রাসীদের আটকানোর চেষ্টাই করেনি। চৌকিদার কোথায়? বলছে পাকিস্তান থেকে এসেছিল। কি করে জানলো যে তারা পাকিস্তান থেকে এসেছিল? যদি সবকিছু আগে থেকে জানতে পেরে যায় তাহলে এই ঘটনা আগে থেকে কেন জানা গেল না? আর যদি পাকিস্তান থেকে সত্যিই এসে থাকে তাহলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হোক। আবার আমরা বলছি সিন্ধু নদীর জল আটকে দেব। কি বলছেন তিনি, শুনুন। स्पष्ट हो गया है कि ये हमारे विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। सबसे समस्या ये है कि जब हमारे घर में हमने चौकीदार रखा हुआ है और हम कहीं चले गए हैं, हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहाँ नहीं ऐसा हो रहा है। यहाँ जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है। कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही यहाँ अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है? उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना लें तो पैसा कितना लगेगा वो तो अभी पूछिए ही मत। अगर पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम ना रुके, तब भी 20 साल लगेगा, तब हम सिंधु नदी का जल रोक पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह दे रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविज़न के एंकर हमने सुना, वो कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को। और इधर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हमारे पास पानी को रोक लेने का कोई उपाय ही नहीं है। तो ये जो बातें हैं ये समझ से बाहर हैं। हमारा ये कहना है कि घटना बहुत बड़ी हुई है, इससे बहुत सारी शिक्षा समझ लेने की आवश्यकता है, सबक लेने की आवश्यकता है। और सबसे पहले जिन लोगों से ये चूक हुई है उनको चिन्हित करने की आवश्यकता है और उनको दंडित करने की आवश्यकता है। उसके बाद अगर कोई बाहरी है तो उसके ऊपर भी प्रहार करना चाहिए। এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানাবেন। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশনের জন্য বেল আইকনে ক্লিক করবেন, ফলো করতে ভুলবেন না আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।